morning student. Today I am going to deliver our next topic is atomic and molecular mass. Okay, so you have already known atomic mass. What is atomic mass? Mass of atom is called atomic mass. It means to say किसी atom की mass है वो होंगे हमारे atomic mass. Okay, like a hydrogen. So अब hydrogen का क्या होगा atomic mass? H. Okay, and what about molecular mass? So mass of a molecule is a molecular mass. It means to say H plus. Okay, it means to say H2. So हो सकते हैं sum of the atomic mass of hydrogen atom. It means to say two same hydrogen atoms is called a molecular mass. It means to say यहाँ पे क्या हुए two hydrogens के sums को अपन क्या बोले? अपन ने क्या बोला? Molecular mass. Okay, so molecular mass का हमने निकाले. It means to say atomic mass, two atomic mass, sum of the same molecules. It means here different molecules, atoms is called molecular mass. Like one more example अपन ने लिया यहाँ पे 1H and plus Cl. So यहाँ पे दोनों मिलके क्या हुए HCl. It means to say molecular mass. So यहाँ पे हमने क्या किया atomic mass के थ्रू क्या है the sum of the atomic mass of hydrogen and atomic mass of chlorine और क्या हो गए वो includes होकर के हमारे क्या बन गए HCl molecular mass of HCl. Okay, so यहाँ पे हमने molecular mass को निकाल लिया. But how to find atomic mass? Okay, so let's see how to find atomic mass. So according to atomic mass earlier first जो है वो हाइड्रोजन पे बेस्ड था बिकॉज हाइड्रोजन जो है वो क्या है मीन्स लेस मीन्स क्या है हल्का है ठीक है ना एंड इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिंगल प्रेजेंट होते हैं. सो फर्स्ट अर्लियर क्या है हाइड्रोजन पे एक्सपेरिमेंट हुए बट उस पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला. ओके, सो इन अ प्रेजेंट टाइम सिंपली किसको यूज किया गया कार्बन 12 के एटम्स को. ओके, नाउ प्रेजेंट टाइम्स क्या हुआ कार्बन 12 के एटम्स में क्या है मींस एटॉमिक मास की आइडेंटिफिकेशन हुई. सो लेट्स सी हाउ इट्स पॉसिबल. सो 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स जो होते हैं हमारे क्या होते हैं 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम. इट मींस टू से 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स होता है कार्बन 12 एटम्स के. ओके, मींस क्या है कार्बन 12 के एटम्स के इक्वल्स होता है 1 AMU. ओके, सो मास ऑफ 1 कार्बन एटम जो है वो आपको पता है कि उसमें क्या होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन. ओके, सो 6 अमाउंट्स होते हैं. सो हमने यहाँ पे क्या है 6 मास प्रोटॉन्स प्लस 6 मास न्यूट्रॉन्स लिए हुए हैं. ओके, सो ये दोनों ही क्या है अब दोनों मींस क्या है सेम क्या है एटम्स में प्रेजेंट है. सो हमने इसको क्या कर दिया प्लस कर दिया बिकॉज सेम एटम्स के हैं. सो इन दिस कंडीशन यहाँ पे क्या हुआ 12 मास ऑफ प्रोटॉन. ओके, सो यहाँ पे हमको प्रोवाइड हुए 12 मास ऑफ प्रोटॉन. यू हैव ऑलरेडी नोन 1 मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स होता है 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम्स के इक्वल्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन. ओके, सो इन दिस कंडीशन अवर मास ऑफ प्रोटॉन इज 12 कार्बन एटम्स के and our value is 1.66 multiply 10⁻⁻24 gram. Okay, so यहाँ पे हमने क्या किया here put a formula 1 AMU 1 atomic mass units is equal 112 है ठीक है 1 AMU is equals है 112 कार्बन एटम. ओके, एंड फिर यहाँ पे हुआ हमारा ये वैल्यू जो हमको प्रोवाइड हुई है. सो हमने यहाँ पे ये पुट कर दिया देन 12 जो है वो क्रॉस हो गया देन आवर वैल्यू इज 1.66 multiply 10⁻⁻24. So according to this situation you can say 1 AMU 1 atomic mass units gram value. Okay, gram value is equals जो है वो the mass of proton 1 proton. It means to say the mass of 1 protons के क्या है ये 1 AMU gram value जो है वो equals होती है. Okay, so in this condition यहाँ पे क्या है हमारा atomic mass मीन्स क्या है कार्बन 12 के थ्रू एटॉमिक मास 1 AMU is equals 12 the mass of carbon 12 atoms proof हुए. Okay, now we will start our next topic is the average atomic mass. So you have already known different atomic means क्या है molecules के atoms के क्या होते हैं different atoms के different atomic mass होता है. Okay, so अपन को by the way average atomic mass निकालना है. So you have already known lots of elements is exist multiple isotopes. Okay, so multiple isotopes
different होंगे. Like their example is you can see here carbon 12, carbon 13, carbon 14 and इनके atomic mass जो है वो different है. First carbon 12 is a 12 atomic mass, carbon 13 is a 13 and carbon 14 is a 14 atomic mass. So in this condition यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है. सो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ओके, सो हाउ टू फाइंड एवरेज एटॉमिक मास. सो इन दिस कंडीशन अपन क्या करेंगे, एटॉमिक मास निकालने के लिए हमको क्या है, मींस जितने भी उनके आइसोटॉप्स हैं उनके अपन को क्या करने पड़ेंगे, प्लस करके एवरेज अपन को निकालना पड़ेगा. ओके, अगर बाय द वे बात आती है सिंगल कार्बन की, इट मींस टू से वहां पे पूछा कि आपको कार्बन 12 का एटॉमिक मास, सो दैट कंडीशन यू कैन से C12, इट मींस टू से देयर एटॉमिक मास इज 12. बट जब आपको पूछा जाता है कि क्या है, सिंपली कार्बन के आइसोटॉप्स के एटॉमिक मास क्या है, सो दैट कंडीशन आपको क्या है, आपको वहां पे उनके एवरेज एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. इट मींस टू से वहां पे कार्बन के जो पूरे आइसोटॉप्स हैं उनके क्या है, टोटल एवरेज एटॉमिक मास जो होगा वो क्या होगा, आपका कार्बन का एटॉमिक मास. वी विल डिस्कस अबाउट अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर mass. Okay, so you have already known about molecular mass. Okay, sum of the atomic mass of the atom is called the molecular mass. Okay, and what about our formula mass? So according to formula mass, the sum of the atomic mass of the ion present in a formula unit of an ionic compound. It means to say ionic compounds में presents plus and minus ions ही present करती हैं formula mass. Okay, so according to our formula mass, यहाँ पे क्या है उनके, means total amounts of atoms या total amounts of molecules को present नहीं करता, वो only show करता है ratios, किस ratios में presents है. So let's see their example. According to our molecular mass, ये represent करता है यहाँ पे कितने amounts of, total amounts of carbon number, total amounts of hydrogen number, total number of ऑक्सीजन एटम. सो इन दिस कंडीशन यहाँ पे क्या है, ये नंबर्स ऑफ एटम्स को, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है. इसलिए टू से टोटल नंबर्स, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में कितने नंबर्स ऑफ एटम्स जो है वो, कितने नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो प्रेजेंट है. बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मास, सो फॉर्मूला मास जो है उसको अपन बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला. सो अकॉर्डिंग टू एम्पिरिकल फॉर्मूला यू हैव ऑलरेडी नोन, they represent their ratio. ठीक है ना, it means to say वो क्या है, इनकी ratios को represent करेगा. Like example is NaCl. ठीक है, NaCl जो है वो कितने ratios में present है, it means to say Na सिंगल है, Cl सिंगल है. ये उसके structures को, उसके atoms को, उसके molecules को identify नहीं करता है, उनके structure के according उसके ratios बताता है. it means to say कितने ratios में present है. Like example NaCl, Na plus Na single, Cl single, so 1:1. Like example is C6H12O6. अब C6H12O6 में ये क्या है, इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में जब ये रिप्रेजेंट होता है, सो ये इस फॉर्म पे प्रेजेंट होता है. ओके, सो इन दिस कंडीशन दे आर प्रेजेंट इन अ CH2O. इट मींस टू से 1:2:1. सो ये क्या है, यहाँ पे इनके रेशियोज को रिप्रेजेंट करता है. अब यहाँ पे हमको रेशियोज के अकॉर्डिंग उनके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई नहीं हो रहे. इट मींस टू से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर्स ऑफ एटम्स जो कितने हैं वो अपन को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के थ्रू आइडेंटिफाई होगा, एंड इसमें अपन को ओनली रेशियोज आइडेंटिफाई होंगे. फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास के अकॉर्डिंग हमको क्या होते हैं, ओनली रेशियोज. इट मींस टू से उनके आयन जो है, आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक फॉर्मूलाज जो है वो आइडेंटिफाई होते हैं. लाइक वन मोर एग्जांपल इज H2O. सो H2O में क्या हो रहा है, यहाँ पे मींस इनकी रेशियोज क्या हो जाएंगे, 2:1. सो यहाँ पे इनके रेशियोज आइडेंटिफाई होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू एम्पिरिकल फॉर्मूला यहाँ पे क्या होते हैं कि रेशियोज आइडेंटिफाई होती हैं, एंड अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर मास उनके स्ट्रक्चर्स में कितने नंबर्स ऑफ एटम्स, कितने नंबर्स ऑफ एटम्स, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो आइडेंटिफाई होते हैं. लेट्स सी आवर एग्जांपल इज कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास. अब मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करनी है अपन को ग्लूकोज की. ओके, सो अकॉर्डिंग टू ग्लूकोज यू हैव ऑलरेडी नोन C, it means to say their molecular
कार्बन रिप्रेजेंट 6 नंबर, सो यहाँ पे क्या है इनके 6 एंड देयर मॉलिक्यूलर मास इज 12.0114 plus 12, it means to say hydrogen जो aromatic में present है, so their molecular mass is 1.0084. Then our next is the oxygen, their molecular mass is 16.004. Okay, so we can put their mass. Okay, and फिर अपन को क्या करनी है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है. It means to say 6 multiply 12 minus 0.114. It means to say multiplication इनके साथ होगा, मल्टीप्लाई होंगे, ये मल्टीप्लाई होंगे. Then our answer is 72.0664 plus 12.0964 then plus 96.004. It means to say ये क्या हुए इनके means average means. Okay, then our next step is total plus. total plus जो होगा वो क्या होगा इनका, फिर हमारा molecular mass of glucose. Our next topic is why mole. क्या नीड है मोल की. So let's see one example is 1 gram salts में numbers of moles कितने होंगे. So आपको लगेगा numbers of mole बहुत होंगे because metals जो है वो क्या है many amounts of atoms and molecules से created होते हैं. So large numbers को handle करने के लिए unit भी हमको उसी level का ही चाहिए होता है. Okay, so जब हम एक शॉप में जाते हैं वहाँ पे हमको 2 डजन बनाना लेना है. Okay, so वहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि 24 बनाना दीजिए भैया, हम क्या बोलेंगे 2 डजन बनाना चाहिए. इट मीन्स टू से 2 डजन इट मीन्स टू से 24, 1 डजन इट मीन्स टू से 12 बनाना. सो हमने वहाँ पे डजन वर्ड यूज़ किया. सो जो डजन एक वर्ड्स है या फिर बोलो एक यूनिट है जो क्या कर रहे हैं लार्ज नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, लाइक दिस वन मोर एग्जाम्पल इज हमारे पास में क्या है 1 मोल पेन प्रेजेंट्स है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू 1 मोल इज इक्वल्स टू होता है 6.022 मल्टीप्लाई 10 to the power 23. 3 मोल्स हमारे पास क्या है पेन प्रेजेंट है. इतना तो आपके घर में रखने के लिए जगह भी नहीं होगी. ओके, सो अकॉर्डिंग टू मोल ये क्या है 7 बेसिक्स यूनिट्स में इंक्लूडेड होते हैं. इट मीन्स टू से हमारे जो 7 बेसिक्स यूनिट्स हैं इनमें जो मोल है वो इंक्लूडेड है. ओके, so according to 1 mole is the amount of substance that contain as many discrete entities as there are atom in exactly 12 gram of 12 carbon isotopes. It means to say 12 ग्राम जो कार्बन 12 एटम्स के जितने आइसोटोप्स होंगे उतना ही 1 मोल है. मैंने क्या बोला 12 ग्राम कार्बन 12 में जितने आइसोटोप्स हैं उतना ही 1 मोल है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन यू हैव ऑलरेडी नोन आवर मोल कॉन्सेप्ट. It means to say you have already known law of chemical combination. According to law of chemical combination you have known Avogadro rule. So according to Avogadro rule यहाँ पे क्या होती है अगर हम आइटम्स के इक्वल वॉल्यूम्स लेते हैं एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर तो उसमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट्स होंगे. ओके, यू हैव ऑलरेडी नोन अकॉर्डिंग टू 1 मोल इज इक्वल्स है 6.022 मल्टीप्लाई 10 to the power 23. इट मीन्स टू से एवोगैड्रो रूल्स फॉलो कर रहा है. सो इन दिस कंडीशन हम इसे क्या बोलते हैं 1 मोल इज इक्वल होगा एवोगैड्रो नंबर और इसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं एन ए कैपिटल एन ए से अपन इसे रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो कांस्टेंट आवर वैल्यू इज 6.022 मल्टीप्लाई 10 to the power 23 पर मोल. ओके, सो 1 मोल में जितने नंबर्स ऑफ एटम्स होंगे किसी दूसरे एलिमेंट्स के 1 मोल में ही उतने ही एटम्स प्रेजेंट्स होंगे. क्या बोला मैंने 1 मोल में जितने नंबर्स ऑफ एटम होंगे किसी दूसरे एलिमेंट के 1 मोल में भी उतना ही एटम प्रेजेंट्स होगा. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन लेट्स सी देयर एग्जांपल. ओके, सो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में हमारे टोटल नंबर्स ऑफ एटम कितने होंगे 6.022 मल्टीप्लाई 10 to the power 23 एटम्स. ओके,
And according to our 1 mole of water molecule, so our water molecule atoms is a 6.022 multiplying 10 to the power 23 moles present होंगे. Okay, and 1 mole of NaCl कितने होंगे? So 1 mole of NaCl is equals होगा हमारा क्या? 6.022 multiplying 10 to the power 23 units of NaCl. Okay, and according to 1 gram, 1 grams में कितने अमाउंट्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट्स होंगे? सो अभी हमने अब 1 ग्राम ले लिया. अभी तक हमने बात करी थी 1 मोल 1 मोल 1 मोल. ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज आप वहाँ पे 1 मोल बोलो या 1 ग्राम ऑफ एटम्स बोलो, इज वो क्या होंगे? दोनों इक्वल्स होंगे. इट मीन्स टू से 1 ग्राम एटम्स जो है, 1 ग्राम ऑफ एटम्स जो है वो इक्वल होता है 1 मोल ऑफ एटम्स. So our value is a 6.022 multiplied 10 to the power 23. Okay. Our next same condition is a 1 gram molecules में कितने molecules होंगे? So our answer is similar. It means to say 1 gram molecule is equal होगा 1 mole of molecule. So according to this condition, our value is a 6.022 multiplied 10 to the power 23 molecule. Okay, so ऐसे questions कुछ आपको confuse करने के लिए आते हैं, so don't be confused. Okay, 1 ग्राम बोलो या फिर 1 मोल बोलो, okay, वो दोनों ही क्या होंगे? इक्वल्स होंगे. It means to say 1 gram atoms is equal 1 mole of atom and 1 gram molecules is equals to 1 mole of molecule. I hope clear all of you in this topic. Thank you.